جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے. ادھر دیکھیے آپ میری طرف. بھائی کیا منہ میں رکھ کے بیٹھا ہے, کم سے کم سن تو لے دیا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے. پوچھا بولے کتنی بار؟ سب کی آواز آنا چاہیے. جو ایک بار درود بھیجتا ہے, اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس پر 10 بار درود بھیجا کرتا ہے. ایک ایک جملے پر آپ کی صدا بلند ہو, اس لیے کہ میں اپنے اور آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, اہل منبر کی بھی آوازیں آنا چاہیے, ذرا بلند آواز سے بول کے دکھایا آپ حضرات بھی. بلند آواز سے آپ حضرات بھی بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. غور فرمائیے, سرور کائنات نے کہا جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا, دنیا کے آفروں کا چکر لگانے والا نوجوان خاص طور سے اس حدیث کو سنے, جس کو تھوڑے سے آفر پر بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے, وہ اسلام کا ایک آفر لے کر کے جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے, اسی قرآن کے 8ویں پارے کی ایک آیت ہے, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اگر تم ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ادھر میرے نبی علیہ السلام نے اسی اصول کے مطابق فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. جو 10 بار درود بھیجا ہے اللہ اس پر 100 بار درود بھیجے گا. اور اگر کسی نے 100 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لی ہے تو یاد رکھو میرے نبی نے اس کو 3 انعام عطا فرمائے. کہا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق, اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھوا دیا جائے گا آنے والا غدار نہیں, میرے محبوب کا وفادار آ رہا ہے. دوسرا جملہ سنیے گا, آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وبراءۃ من النار, اور یہ بھی لکھ دیا جائے گا یہ جہنم سے آزاد ہے. اور آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. رب قدیر کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں کسی اور مقام پہ نہیں بلکہ شہیدوں کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہا کریں. جب کوئی سرکار کے خلاف بھوکے آپ سرکار کی محبت میں درود پڑھیں. بات سمجھ گئے نا, تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے نبی سے عشق کرنے والے بھوکنے والوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ محبوب کا ذکر اور بڑھا دیا کرتے ہیں. اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے اور میرا مدرسہ بھی 7 بجے سے رہتا ہے, اور پڑھانا بھی ضروری ہے سنانا بھی ضروری ہے, دونوں کام ضروری ہے. میں تو اسی خیال سے آیا تھا کہ 11:15 تک میری تقریر کرا دی جائے گی, لیکن اب جتنا وقت کم ہوا ہے اسی اعتبار سے مختصر انداز میں گفتگو کر دیتا ہوں. 1 بجے تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی بات کو ختم کر دیا جائے. 20-25 منٹ کی گفتگو آپ سماعت کر لیجیے. آپ اپنے پوسٹر کا عنوان دیکھیے گا. میری عادت ہے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. نہ میں سنی ہوئی باتیں بیان کرتا ہوں نہ کسی ادھر ادھر کی باتیں کرتا. الحمدللہ میرے مرشد نے مجھے ذہن دیا ہے کتابیں پڑھو اور پڑھ کر قوم تک مصطفیٰ کا پیغام لے کر. بہت بڑھیا ہے. قرآن پاک نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, چونکہ آپ کے پوسٹر کا عنوان بھی ہے ذکر مصطفیٰ اور دوسرا ہے اصلاح معاشرہ. دونوں پر انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کروں گا. قرآن پاک نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ابھی ہندوستان میں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر میری گفتگو سماعت کیجیے. یہ جو محفل پاک سجائی ہے
کہ کہیں نہ کہیں مناسبت ہے جشن عید میلاد النبی کی، بولو ہے کہ نہیں؟ حضرت علامہ سید الوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی آپ نے حضرت مولانا انوار صاحب قبلہ سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات سنی. میں آپ کو ایک عربی عالم جو فقہ حنفی بھی جانتے تھے، فقہ مالکی بھی جانتے تھے، حنبلی بھی جانتے تھے، شافعی بھی جانتے تھے، 4 فقہوں کے عالم تھے. یہ الگ بات ہے کہ مسلکی اعتبار سے وہ خود مالکی تھے. توجہ فرمائیے گا، دائیں بائیں نہیں، غور کریں آپ. وہی حضرت علامہ سید الوی مالکی ارشاد فرماتے ہیں احتفلوا بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنی مسرور بہ. آپ نے کہا سنو، میں سرکار کے میلاد کی محفل سجاتا ہوں، سرکار کے میلاد کا جشن مناتا ہوں، جلوس محمدی میں شرکت کر رہا ہوں، گلی میں بیٹھتا ہوں تب نبی کا ذکر کرتا ہوں، گھر میں بیٹھتا ہوں تب نبی کا ذکر کرتا ہوں. توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں احتفلوا بمولد النبی، میں سرکار کے میلاد کی محفل اس لیے سجاتا ہوں لأنی مسرور بہ، اس لیے کہ میں سرکار سے خوش ہو گیا ہوں، مدینے والے سے مجھے خوشی ہے. ذرا بڑا نواز سے بولے تو صحیح سبحان اللہ. میں نے کہا اگلا جملہ سنو، آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي مَسْرُورٌ بِهِ، کہا میں سرکار سے خوش اس لیے ہوں لِأَنِّي مُحِبٌّ لَهُ. اب میں اسی ٹرین کو اور ہندوستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے اسی کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کا سرکار کی محفل اس لیے سجاتا ہوں کہ میں سرکار سے خوش ہوں. ہم نے کہا سرکار سے خوش کیوں ہو؟ کہے کہ آئی نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے خوش ہوں، مجھے سرکار سے محبت ہے. ہم نے کہا سرکار سے محبت کرتے کیوں ہو؟ تو آپ کہنے لگے لأنی مؤمن بہ، اس لیے کہ میں سرکار پر ایمان رکھتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. غور فرمائیے گا، قرآن نے کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. اب ایک بات بتا دوں آپ کو، حالانکہ ایسا امپوسیبل نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجئے، سپوز کیجئے دنیا میں کوئی بھی سرکار کا ذکر نہ کرے پھر بھی میرے نبی کا ذکر بنا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سرکار کے ذکر کرنے سے، ہمارے ذکر کرنے سے نبی کا ذکر بلند نہیں ہے، بلکہ سرکار کا ذکر کرنے سے ہم بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری نسبت ہے. اور ذرا غور کیجیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو آیات کریمہ اور آیات مبارکہ نازل فرمائی، پہلے قرآن کا تیور دیکھیں. میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں کہا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، قرآن نے کہا قل، محبوب آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. ذرا غور کیجیے گا نوجوانوں، سرکار سے قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے محبوب آپ یہ کہو ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری عبادت، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور آنے واحد کے لیے مجھ پر اجل اور موت کا آنا، اے اللہ یہ سب تیرے لیے ہے. ہم نے کہا سرکار نے نمازوں کو اللہ کے لیے کیا، عبادتیں اللہ کے لیے کی، جینا اللہ کے لیے کیا، اور دنیا سے گئے تو سرکار کو تو اختیار تھا. نبی چاہتے تو دنیا میں رہتے، نبی چاہتے تو دنیا سے چلے جاتے، آقا کو اختیار دیا گیا. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے کہا میں اسی کو پسند کرتا ہوں جس میں اللہ کی رضا ہے. اختیار اگرچہ مل گیا، ہم نے کہا سرکار کا جینا بھی اللہ کے لیے، حضور کی اجل پاک جو آنے واحد کے لیے آئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. سرکار نے جب سب کچھ اللہ کے لیے کر دیا، میرے رب تبیر کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو نے نمازیں ہمارے لیے کی ہے، ہم فتح تیرے لیے کر رہے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو نے نمازیں عبادتیں ہمارے لیے کی ہے، ہم نے بھی تجھے یہ انعام دیا ہے تیری خاطر تیرے اگلوں کی اور تیرے پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کر رہے ہیں. اے میرے محبوب تو نے اپنی نمازیں عبادت
कर्नाटक की सरजमीन पर तुम्हें सालिमों ये पता नहीं, तुमने जहां से पोस्टर या बैनर हटाया था तुम्हें मालूम होना चाहिए वो जमीन आज भी तुम्हें पोस रही होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि कानपुर की सरजमीन हिंदुस्तान से बाहर नहीं और हिंदुस्तान मेरे नबी की बादशाह से बाहर नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था जान को फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इलामा तहतल अर्दी, ए महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने किसी और को मालिक नहीं बनाया है, तुझे ही मालिक बना दिया है। कानपुर भी इसी फर्श में है और जहां से बैनर हटा वो भी मुस्तफा ही की हुकूमत में है, इसलिए बैनर जहां से हटाया था वो जमीन कहती होगी यहां से हटा दिया तो क्या हुआ, इस पर हुकूमत तुम्हारे बाप की नहीं रसूल पाक की चला करती है। बरेली का इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और मेरे पीर कहने लगे जहां वाली अता कर दो, जहां वाली अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म करिया बेल करिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम नक़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर फरमा रहे हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद किया। जिक्र मुस्तफ़ा करने वाली सबसे पहली जात मेरे रब की है। अरे बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र किया है, किसका? मदीने वाले का जिक्र किया है। आओ इसी जिक्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हदीसे पाक नहीं, पहले कुरान पाक की आयत करीमा को देखते हैं। जब अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया और क्या फरमाया, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कहा है वो एक बात तो बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? तो ईमान वालों की रूहें हो, काफिरों की रूहें हो, बड़ अकीदा की हो, खुश अकीदा की हो, वफादार की हो, गद्दार की हो, सबकी रूहों ने कहा था क्यों नहीं, यकीनन तू हमारा रब है। अब अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा किया। जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों की रूहों को जमा किया। उसमें मेरे जैसे आप जैसों की रूहें नहीं, हजरत अंबिया की रूहें हैं और उनकी रूहें हैं जिनसे कभी गुनाह हो नहीं सकता है। ये तो बदअकीदा देवबंदी कौम बोलती है ना, आदम से गुनाह हो गया था इसलिए उनको जन्नत से नीचे उतार दिया गया। हजरत अल्लामा इरशाद रामपुरी के शागिर्द रशीद ने जलालैन शरीफ के हाशिये में बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा बदबख्तों तुम्हें पता ही नहीं आखिर उतारा क्यों गया था आदम की पुष्ट में। तुम जैसे गद्दार भी थे, हम जैसे वफादार भी थे, तुम जैसे निकम्मे भी थे, हम जैसे वफादार भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि गद्दारों को जमीन पे छोड़ जाए, वो जहन्नम का ठिकाना, जहन्नम उनका ठिकाना बने। इस जवाब पर तवज्जो चाहूंगा वरना मुझे डाउट होने लगता है। अगर कोई आदमी खामोश बैठता है, याद रखिएगा रद्द करता था, रद्द करता हूँ, रद्द करता रहूंगा। इसलिए कि मुझे मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा ही रद्द से शुरू होता है। जिसको कलमा समझ में नहीं आता, जिसको रद्द समझ में नहीं आता, याद रखना वो कलमा ही नहीं समझ पाया है। हमने कल ला इलाहा पहला ला लेकर के कमाने वालों को बता दिया गया इस्लाम का आगाज ही रद्द से हो रहा है। हम तो एक रब को मानते हैं, सबको नहीं मानते, सिर्फ एक रब के सामने सजदा करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं ये पेशानियां हर कोई पे नहीं झुकती, सिर्फ करे खुदा पे झुका करती है। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा किया। अब अल्लाह जिक्र कर रहा है अपने महबूब का। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने नबियों की रूहों से कहा ऐ नबियों की रूहों सुनो, मैंने तुम्हें किताब का इल्म दिया है, मैंने तुम्हें किताब दी है, मैंने तुम्हें हिकमत से नवाजा है। याद रखो अगर तुम्हारे पास मेरा रसूल कब जिक्र हो रहा है, अभी आदम का वजूद भी इंसानी शक्ल में नहीं है, उस वक्त भी मुस्तफा का जिक्र चल रहा है। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो।
उस वक्त भी क्या हो रहा है, मुस्तफा करीम का जिक्र हो रहा है और हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तफसीर भी सुना देता हूँ। हम हजरत अली को मानते हैं मगर आज के एतबार से हम मौलाई नहीं है, सुन्नी से वो अकीदा है। याद रखिएगा, अगर कोई लफ्ज मौलाई की रट लगाता है तो याद रखना आज के दौर में मौलाई उसको कहा जाता है जो सहाबा को गालियां देता हो। बोलो तुम गालियां देते हो सहाबा को, आज के दौर में मौलाई उसको कहा जाता है जो अमीर मुआविया के खिलाफ भड़कता हो। इसलिए कोई किसी तरह की इस्तिलाह या अपना कोई नया माना लेकर आए उसको एक्सेप्ट ना कीजिएगा। हम कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है और मरते तब तक सुन्नी रहेंगे। और सुन्नियों का मिजाज क्या है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और नाम है हिजरत रसूलुल्लाह की। आज के दौर में लफ्ज़ मौलाई लोग समझाएंगे। हमने कहा आला हजरत से ज्यादा समझदार कौन है? क्या आला हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते थे? यकीनन करते थे। फिर अहले सुन्नत क्यों कहा? ये कहते थे अहले सुन्नत की बजाय मौलाइयों का है बेड़ा पार, मगर आला हजरत की नजर जानती थी और आला हजरत देख रहे थे। एक दौर ऐसा आएगा लफ्ज़ मौलाई को लोग इस्तेमाल करेंगे अपने लिए कि जो अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। इसलिए मेरे आला हजरत ने अहले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दुनिया वालों को बता दिया ये ऐसी इस्तिलाह है क़यामत तक जो गालियां देने वाली नहीं होगी। मोहब्बत अहले बैत भी बसाएगी, मोहब्बत सहाबा भी बसाएगी। बहुत बढ़िया। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत करीमा की तफसीर को उठाया और उठाने के बाद आप फरमाते हैं लम यबासिल्लाहु तबारक व तआला नबिय्यन इला आदम फमन बअदहु इल्ला अखज़ अलैहि अल-अहद फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं जब भी कायनात में अल्लाह किसी नबी को भेजता था उस नबी से कहता था, अल्लाह वादा लेता था किसके बारे में? मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार के बारे में वादा लेता। और क्या वादा लेता था? कहता था लइन बुइसा व हुवा हय्युन लयुमिनन्ना बिही व लयंसुरन्ना। फरमाता था उस नबी से सुनो, अगर तुम्हारे जमाने में मेरा आखिरी नबी आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, तो उसके बारे में तुम्हें करना क्या है? उस पर ईमान लेकर के आना है, उसके बारे में उसकी मदद करना है। हमने कहा हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश हजरत अंबिया से अल्लाह वादा लेता रहा, आदम अगर मेरा महबूब आएगा उस पर ईमान भी लाओगे। हालांकि आलमे अरबा में रूहों की दुनिया में हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से कहा था बताओ तुमने इकरार किया? उन्होंने कहा था हाँ हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ और मैं भी गवाहों में से हूँ। जरा अहले इल्म की आवाज तो आ जाए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा गौर करे हजरत आदम अला नबी गिरा वालेहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह सारे नबियों से वादा ले रहा है। और जब वादा ले रहा था तो बताओ आदम से वादा लिया जिक्र मुस्तफा हो गया, शीश से वादा लिया जिक्र मुस्तफा हो गया, नूह से वादा लिया जिक्र मुस्तफा हो गया, इब्राहिम से वादा लिया जिक्र मुस्तफा हो गया। इसीलिए तो अल्लामा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो आलिम कुरान भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, हिब्रुल उम्मा भी है, सहाबी रसूल भी है, सरकार के सगे चचाजाद भाई भी है। बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं इसी आयत करीमा की तफसीर में, कहते हैं लम यसलिल्लाहु यतकद्दमु फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व लम तज़लिल उममु ततबाशरु बिही व तस्तफ्तिहु बिही हत्ता अखरजहु अल्लाहु तबारक व तआला फी खैरि उम्मतिन व फी खैरि कर्निन व फी खैरि बलदिन व फी खैरि असहाबिन। जरा तवज्जो फरमाना, आप कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अल्लाह ताला सारे नबियों से अहदो पैमान लेता रहा किसके बारे में? मुस्तफा करीम के बारे में। और पिछली उम्मतें आई वो सब नबी की बशारतें सुनाती रही। हजरत आदम की उम्मत आ रही है, नबी का जिक्र कर रही है। अरे नहीं सुनो तो सही, जब हजरत आदम बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे हजरत शीश को अल्लाह हजरत आदम ने बुलाया और बुलाकर कहा ए बेटा जब भी खुदा का जिक्र करना मुस्तफा का जिक्र जरूर करना। हजरत शीश कहने लगे खुदा का जिक्र करूं, खालिक व मालिक है, मुस्तफा का जिक्र क्यों? हजरत आदम का जुमला शहनो दिमाग में बिठा कर लेकर के जाना। अरे तुम कहां से हमारे
चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे आका और गुलाम को कभी मिलाया नहीं जाता। इमाम आजम आका है और आला हजरत गुलाम है। गुलाम को इमाम के मुकाबिल कभी नहीं लाया जाता। जो काम किया है आला हजरत ने वो इमाम आजम ही का किया है और पूरी जिंदगी आला हजरत ने फ़िक़े हनफी ही का काम किया है। हम बड़े प्यार से अर्ज करते हैं, अगर किसी को आला हजरत का कोई फतवा इमाम आजम के फतवे के खिलाफ नजर आए तो हमें भी दिखा दे, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोई फतवा उस फतवे के खिलाफ नहीं आता तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़िक़ही की खिदमत आला हजरत ने की है। मसलक आला हजरत का नारा लगाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान सारे नारे उसी में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। है हमारे सब भाई हैं और हमारे सब अपने हैं, मगर आप जानते हैं कि दोस्त दोस्त को समझा दे, यही सबसे बड़ी समझदारी है। आज के दौर में लोग बिगाड़ना चाहते हैं, संवारना नहीं चाहते। मैं किसी को बिगाड़ने नहीं आया हूँ, सबको संवारने आया हूँ। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप कहते हैं वलम तसलिल उमम तशतबाशरु बिही। जरा गौर कीजिएगा, एक नुक्ता मोहम्मद अरबी का है, मोहब्बत रसूल का है। सारे सुन्नी उसी मोहब्बत पर जमा है और फिरके वाले जमा नहीं है। सिर्फ एक जमात है जिसको अहले सुन्नत कहा जाता है, वही मोहब्बत रसूल पे जमा है, वरना और जमातें नहीं जमा है। अगर जमा होती तो यकीनन सब सुन्नी ही बन के जिंदगी काटते, फिर बद अकीदा बनने की कभी कोशिश ना करते। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात के आने की बशारतें सारी उम्मतें देती नहीं। हाल तो ये था, नबी का नाम लेकर काफिरों के खिलाफ कामयाबी की दुआएं किया करते थे। कुरान के पहले पारे को पढ़ो, वकानो यस्तफ्ती वकानो व कब्ल यस्तफ्तिहूना अलल लदीना कफरू। कहा ये यहूदी जो थे, यहूदी ये सब के सब मुस्तफा करीम का नाम लेकर काफिरों पर कामयाबी की दुआएं करते थे और दुआ के अल्फाज भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने महफूज फरमा लिए। कहते थे अल्लाहु अंसुरना अलैहिम बिन्नबिय्यिल मबऊसी फी आखिर ज़मानी। कहते थे मौला हमें उसी नबी के बरहक जो आखिरी जमाने में आएगा उसके सदक़े में कामयाबी अता फरमा। सरकार का वसीला देकर जब यहूदियों को कामयाबी मिल सकती है तो मुसलमान वसीला देंगे, कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कैसा मुसलमान है जो वसीले का इनकार करता है? हम आदम की औलाद हैं, हमने अपने बाप की रविश को पकड़ा है, किसी नापाक की रविश को नहीं पकड़ा है। जो है आप हजरत बड़े खामोश बैठे हैं। आला हजरत ने कहा क्यों रजा आज गली सुनी है, बड़े धूम मचाने वाले फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बड़ा प्यारा जुमला है। ऐ मेंबर साहब आप बड़े खामोश खड़े, क्या बात थक गए हैं तो बैठ जाइए, वही बैठ करके सुनिए, है ना। बड़ी खामोशी के आलम में कुछ लोग वक्त ऐसा आ गया है ना कि अब मुंह खुलने लगता है तकरीर सुनी नहीं बल्कि तकरीर जो है वो अंदर की जा रही है, तनामुल फरमाई जा रही है। इसलिए आप वो कैफियत पैदा मत कीजिएगा, जज्बे के साथ रहिएगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि जो समंदर में भी अपने रास्ते बना लिया करते हैं, हवाओं में भी अपने रास्ते बना लेते हैं। तवज्जो फरमाए, मैं बात इश्क़े रसूल की, ज़िक्र रसूल की कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ये सब आते रहे, मुस्तफा की बशारतें देते रहे। हमने कहा आगे क्या हुआ? कहते हत्ता अखरजहुल्लाहु तबारक व तआला फी खैरि उम्मतिन, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुस्तफा को सबसे बेहतर उम्मत में पैदा फरमा दिया है। मगर याद रखिएगा उम्मत की बेहतरी उम्मत की वजह से नहीं है, ये भी मदीने वाले का सदका है। आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। अल्लाह से बेहतर उम्मत में मेरे नबी को पैदा किया। तवज्जो चाहो, अगला जुमला वफी खैर कर्मिन, अल्लाह ने सबसे बेहतर सदी में मुस्तफा को पैदा किया।
अफसोस इस बात पर होता है कि जो सबसे बेहतर जमाना था, सहाबा ने पूछा था, एक सहाबी आए कहने लगे अय्युन्ना से खैर, मेरे आका अलैहिस्सलाम ये तो बताए सबसे बेहतर लोग कौन है? सरकार ने फरमाया करनी, मेरे जमाने के लोग सबसे बेहतर लोग हैं। आज तो जमाना 1400 साल से जायद हो गया, अब तो 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है। 1500 साल के बाद अगर कोई किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, किसी सहाबी की शान में तौहीन करता है, चाहे वो नाफिजी हो, लामनिहात मौलाई हो, इन सबको आप सोचिएगा ये वो बदबख्त लोग हैं जो सबसे बेहतर लोगों के खिलाफ जबान खोल रहे हैं। अरे सरकार कहते हैं करनी सबसे बेहतर जमाने के लोग मेरे जमाने के लोग हैं, इसलिए कि आज के दौर में नजरों के सामने मुस्तफा नहीं है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जिस जमाने का तस्करा किया है वो जमाना था जिसमें सहाबा फजर की नमाज पढ़ने जाते थे तब मुस्तफा का चेहरा देखते थे, ज़ोहर पढ़ने जाते थे तब मुस्तफा का चेहरा देखते थे, मगरिब पढ़ते थे तब मुस्तफा का चेहरा देखते थे। इसलिए आज का बदकार सबसे बेहतर कौम को अगर बुरा करता है तो फैसला कर लेना गलत वो नहीं है, गलत ये है, इसलिए कि वो मुस्तफा को देखे हुए लोग हैं। और उनका कमाल ये है ला तमुस्सुन्नार मुस्लिमन रहानी और दामन रहानी, सरकार फरमाते हैं जहन्नम की आग में इतनी ताकत रही कि उस मुसलमान को चलाना तो दूर की बात, टच नहीं कर सके। किस मुसलमान को? सरकार कहते हैं जिस ईमान वाले ने तुम्हारे नबी का चेहरा देख लिया। नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हम तो एक बात अर्ज करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, झांसी और बेंगलोर देख लिया है, कोई दूसरा बेंगलोर कराना हो तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी तैयार है, इसलिए कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सहाबी और अहले बैत सबके दिफा के लिए खड़े रहेंगे। अगर हम इन जातों पर का दिफा नहीं कर सके तो हमारा मरना ही बेहतर है। अल्लाह वो दिन ही न लाए कि जिस दिन हम इनके दिफा में खड़ा ना। समझ गए? गौर फरमा रहे सरकार अलैहिस्सलाम की शान में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत में पैदा फरमाया, और आगे फरमाया वफी खैर कर्न, सबसे बेहतर सदी में पैदा किया। और अगला जुमला बोलूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। अगला जुमला सुनिएगा, वफी खैर बलदिन, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को सबसे बेहतर शहर में पैदा फरमाया। समझ गए? अब वो बहस मत लाइएगा कि मदीना अफजल है कि मक्का। आला हजरत ने साफ कह दिया तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? अगला जुमला सुनिए, वफी खैर अस्हाबिन, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह ने सबसे बेहतर सहाबा में पैदा किया है, सबसे बेहतर यारों में पैदा किया है, सबसे बेहतर दोस्तों में पैदा किया है। और नबियों के भी असहाब रहे हैं, मगर जो इन असहाब को मकाम और मर्तबा हासिल है, अरे हम कहते हैं हजरत गौसे आदम तो सहाबी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उलमा ने लिखा है पिछले नबियों की उम्मतों में जो वली आए हैं उनसे भी बड़ा मकाम अब्दुल कादिर जीलानी का है। आसिफ बिन बरकिया जो बिल्किस का तख्ते शाही लेकर आए, वकाल लदी हल्दहु इल्मुम मिनल किताबी अला आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफु, 19वां पारा जिनके इस मकाम और मर्तबे को बता रहा है, उस आसिफ बिन बरकिया से भी बड़ा मकाम अब्दुल कादिर जीलानी का है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा जब मुस्तफा की उम्मत के वलियों का ये मकाम है तो मुस्तफा के सहाबा का मकाम और मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। की चल रही है, मगर कोई ये ना कहे बीच में जिक्र सहाबा लेकर के आ गए। मैं कहूंगा जिक्र सहाबा भी जिक्र मुस्तफा है। बहुत बढ़िया बात समझ गया ना? वजह यह है कि जिक्र मुस्तफा भी उसी का कबूल होता है जिसके दिल में जिक्र सहाबा से मोहब्बत हुआ करती है। अगले जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत मैंने सुना दी। अब चलो कुरान पाक की आयत करीमा का सहारा ले लिया है, हालांकि बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जिनके बारे में मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, और जिक्र मुस्तफा यकीनन हमारी कामयाबी का जरिया है। आप जानते हैं आला हजरत ने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा है,
میرے امام نے فرمایا جب سرکار کی محفل سجتی ہے, اب کوئی بات نہ کرے, میری بات کو دھیان سے سنے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب سرکار کی محفل سجتی ہے فرشتے ایک دوسرے کو انویٹیشن دیتے ہیں, عربی میں کہا تداعی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کہاں رہے ہو, تمہارا مقصد کہیں اور نہیں, مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہونے والا ہے. ہم نے کہا جب فرشتوں کو مقصد یہاں مل رہا ہے تو ہم دیوالوں کو کہاں ملے گا, ہمارا بھی مقصد یہی ہے. غور کیجیے گا. اور ایک جملہ اور سنیں, ہم نے کہا سن تو صحیح, ہم تو اگر تو ایک بینر ہٹائے گا نا, آپ نے دیکھا نا ایک بار آئی لو محمد پر اعتراض کیا تھا, ہمارے سنی ہمارے مسلمان بیدار ہو گئے, ہر آدمی نے اپنے اپنے اسٹیٹس پر لگانا شروع کر دیا, جلسے بھی ہونے لگے اور دنیا والوں کو بتا دیا یہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا, اور نہ محبت ہمارے سینوں سے کبھی نکلی ہے نہ کبھی نکالی جا سکتی ہے. اور یہ بھی ذہن دے دیا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے خلاف بولا جائے ہم سے برداشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے ایمان والو تم اپنی جانوں کے اتنے حقدار نہیں جتنے مصطفیٰ تمہاری جانوں کے حقدار ہیں. زیادہ کام لے رہے ہیں, میں چاہتا ہوں زبان سے زیادہ کام لے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے, تاج الشریعہ اپنی کتاب الفردہ میں لکھتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے ایک ذکر ہوتا ہے. دل سے کیا جائے وہ ذکر ہے, زبان سے کیا جائے وہ ذکر ہے, اور یوں کیا جائے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ہے نا. اور بیچ والا راستہ نہ نکالیے بھائی, کوئی ایک تو در پکڑیے, یا تو ذکر کیجئے یا ذکر کیجئے, ہے نا. لیکن آپ جانتے ہیں ہم قادری ہیں, قادریوں کے ہاں ذکر بالجہر کی بڑی قدر ہے. اب بولیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھو, چلو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں. ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا شریف نہیں تیار ہوا ہے, ابھی آب و گل کے مراحل بھی نہیں آئے ہیں, نہ ابھی آب ہے نہ گل ہے. ابھی تو اللہ نے نبیوں کا نور پیدا کیا ہے اور مصطفیٰ کا نور پیدا کیا ہے. امام قسطلانی کی کتاب المواہب اللدنیہ میں بڑی پیاری روایت ذکر کی گئی ہے, انشاءاللہ دل سے سنیں گے مزہ بھی آئے گا, لذت ایمانی بھی حاصل ہوگی اور ایمان میں جلا بھی پیدا ہوگی. توجہ فرمائیے گا, جب اللہ نے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا کیا اس کے بعد نبیوں کے نور کو پیدا کیا. توجہ کریں, حضرت اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے نور سے کہا انظر یا نور محمد انظر الی انوار الانبیاء. مصطفیٰ کریم کے نور سے کہا گیا جا جا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور ذرا دیکھ لے, نبیوں کے نور کو دیکھ. حضرت آدم کا نور بھی ہے, حضرت شیش کا بھی ہے, 1,24,000 کم و بیش حضرات انبیاء کا نور موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب کے نور ذرا نبیوں کے نور کو دیکھ. سرکار کے نور نے جیسے ہی دیکھا نا فغشیہ ہو, سرکار کا نور ان سارے نوروں پر غالب آ گیا, سب کو ڈھانپ لیا, سب کو چھپا لیا. حضرت آدم علیہ نبی گرا علیہ السلام کے نور کو اللہ نے بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی. اس نور نے عرض کیا من نور ہوں, اے اللہ یہ تو بتا یہ کس کا نور ہے. اللہ نے فرمایا ھذا نور آخری خلد کا من الانبیاء, یہ تیری نسل میں آنے والے سب سے آخری نبی محمد عربی کا نور ہے. ہم نے کہا جب کائنات میں آدم کا پتلا بھی نہیں ہے, انسانی شکل بھی نہیں ہے, ابھی اللہ نے نوروں کو پیدا کیا ہے, تب بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر بھاگ ہو رہا ہے. یہ ذکر اتنا پرانا ہے, دنیا اتنی پرانی نہیں ہے جتنا پرانا وہ مصطفیٰ کا ذکر بھاگ. ایک ہی عنوان ذہن میں رکھیے گا, ذکر مصطفیٰ, ورفعنا لک ذکرک. اسی پر عرض کر رہا ہوں, حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام سے خطا ہو گئی, لغزش ہو گئی, جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا ہے, یہ اپنا توجہ فرمانا, گناہ نہیں ہے وہ, اس لیے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو معصوم عن الخطا ہو, جس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبیوں سے بھی گناہ ہونے لگے تو پھر ہماری ہدایت کرے گا کون؟ جب ان کے قدم بہکے ہوئے ہوں گے تو ہمیں سدھارے گا کون؟ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بہکنے سے, اللہ نے نبیوں کو گمراہی سے, اللہ نے نبیوں کو صفاحت سے, ان ساری چیزوں سے پاک رکھا ہے. اللہ
रब्बुल इज्जत ने नबियों को खूबियां अता फरमाई है, बुराइयों से अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। जरा नबी की खूबियां देखो तो सही। जब कुरान को पढ़ने लगे, हमने कुरान को पढ़ा तो कुरान कहता है वनजमी इज़ा हवा। तो कुरान हमने कुरान को पढ़ा तो कुरान ने सरकार के मेराज पर जाने को बयान किया तो कहने लगा सुभान अल्लाह। मेराज से आने को बयान किया तो कुरान बोला वनजमी इज़ा हवा। सरकार की ताज़ीम की बात आई तो कुरान बोला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। जब सरकार के करने की बात आई तो कुरान बोला वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अरे यही तो जिक्र मुस्तफा है। हमने कहा सरकार के चेहरे की बात आई तो कुरान ने कहा वद्दुहा। सरकार के जुल्फ की बात आई वल्लैलि इज़ा सजा। सरकार अलैहिस्सलाम पर क्या उतरा है कुरान ने बता दिया नुज़िला अला मुहम्मद। ये कुरान मुहम्मद अरबी पे उतरा है। आप पढ़ते चले जाइए कुरान पाक के इल्म के समंदर में गोते लगाते जाए। इमाम गज़ाली ने तो यहाँ तक फरमाया है कुरान की हर सूरत मेरे नबी की नात है। आपने कहा हत्ता के सूरह इखलास भी मेरे नबी की नात है। सवाल किया गया इसमें तो अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें तो सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र है। आपने फरमाया जिक्र इलाही से पहले कुल से कलमा शुरू हो रहा है। कुल का माना कहना है। पता चला खैर मुकल्लदियत व वहाबियत। इस जुमले को सुन ले तौहीद वही कबूल होती है जो करे मुस्तफा के जरिए हासिल की जाती है। हर सूरत मेरे नबी की नात है। पीछे वालों बोलो तो सही है। हर सूरत मेरे नबी की नात है। बात समझ गए ना। और ये नात है। जब कुरान में जिक्र आ गया तो कुरान तो अल्लाह का कलाम, कलाम अल्लाह का अजली अबदी। सरकार की नात कितनी पुरानी समझ भी नहीं सकते। जब न ई है न आ है न ऊ है न चुनी है न चुना है न जमी है न जमा है न मकी है न मका है, उस वक्त भी नबी का जिक्र। और जिक्र करने वाली जात मेरे रब्बे कदीर की है। बोलिए जरा बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना। मैंने कुरान की चंद आयतें पढ़ी। इन आयतों को पढ़ने के बाद आला हजरत का रुख किया। हमने कहा आला हजरत आप क्या कहते हैं। आला हजरत कहने लगे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लिखते लिखते गौर करते करते चूंकि जहन में आ गया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहा था अबू बकर मेरे रब के अलावा मुझे हकीकत में कोई नहीं जानता है। अब आला हजरत भी कहने लगे हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हमने कहा आला हजरत इख्तिताम किस पर किया। कहने लगे लेकिन रज़ा ने खतरे सुखल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमने कहा क्यों तारीफ नहीं कर पा रहे हैं जैसी करना चाहिए। आला हजरत कहते हैं ए रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मत्ता है हुजूर तुझसे फिर मुमकिन है कम मिदहत रसूलुल्लाह की। हमने कहा आला हजरत जरा इश्क में चला पैदा हो रही है कुछ और तो सुनाए। हमने नबी की रफ्तार को पढ़ा है, नबी की गुफ्तार हवायती को अनिल हवा को पढ़ा है, हमने सरकार के चेहरे को पढ़ा है, हमने सरकार की सुल्फों को पढ़ा है, नबी के करने को पढ़ा है, नबी के दस्ते पाक को पढ़ा है, नबी की ताज़ीम को पढ़ा है, नबी के मकाम को पढ़ा है, नबी के अदा को पढ़ा है। आला हजरत आप क्या कहते हैं। मेरे इमाम कहने लगे अल्लाह की सरकार करम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान को ईमान बताता है ये। हम ईमान के दरवाजे पर गए ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हिद में इसके रुखे शक का दाग लेके जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुमला मैंने सुनाया नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बज़ाहिर दुनिया से जाने लगे ना हजरत शीश को बुलाया और बुलाकर कहा बेटा जब भी खुदा का जिक्र करना मुस्तफ़ा का भी जिक्र करना। हजरत शीश ने कहा अब्बा जान खुदा का जिक्र करूं खालिक व मालिक है लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों। हजरत आदम का जुमला सुनना कहते हैं समयतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ली सआतिहा। बेटा मैंने हर लम्हा खुदा के फरिश्तों को मुस्तफ़ा का जिक्र करते हुए सुना है। हमने कहा कहाँ
ہٹائے گا بھائی؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے ذکر کرنے کے لیے، اور ہر دن 70,000 فرشتے جو آتے ہیں کیا کرنے آتے ہیں؟ اگر آپ کہو تو میں کلیئر کر دوں۔ کرو اہل ممبر کہہ رہے ہیں کلیئر کر دیجئے، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں؟ کریے ساری دنیا کو نیند آ گئی، سبحان اللہ ان کا دیوانہ بیدار ہے، ارے آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اور یہی ملا لیجیے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسن اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہو گئی، لما اقترف آدم الخطیہ، حضرت آدم سے خطا اجتہادی ہوئی، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اسألوک بحق محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی۔ حضرت آدم کہتے ہیں مولا مجھ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، میں تجھے محمد عربی کا وسیلہ دیتا ہوں، وسیلہ دیتا ہوں، وسیلہ۔ اشارہ سمجھ نہیں پا رہے ہو، کب سمجھو گے؟ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد، سب کتاب بڑا پیارا جملہ میرے امام نے ذکر کیا۔ ایک بات تو بتاؤ، قرآن کہتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ارے بولو ہے نا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے آگے کہا جب اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، یہ اہل علم کے لیے خاص طور سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے بغیر خدا تک پہنچنا محال عالی ہے، اور ولیوں کے بغیر مصطفیٰ تک پہنچنا آپ نے کہا خدا کی مصطفیٰ کے بغیر خدا تک پہنچنا یہ محال عقلی ہے، اور بزرگوں کے بغیر مصطفیٰ تک پہنچنا یہ محال عادی ہے۔ پتہ چلا سچی اولاد آدم کی وہی ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا کرتی ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کائے پریشان ہو رہے؟ کپڑے گندے ہوں گے تو ہونے دو، ہم خاک ہیں اور خاکی مابا ہے ہمارا، سمجھ گئے نا؟ ہمیں خاکی میں جانا ہے، بات سمجھ گئے؟ اچھا ان کی اس کیفیت سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضور نور ہے، جی بے شک جو حضور کو نور مانتا ہے اس کے دل میں سرور ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بولو حضور نور ہے، سب مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ ابھی میں روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں نا 70,000 والی، اس سے بھی نورانیت ثابت ہوگی، مگر ایک جملہ دے دو۔ انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ 4 چیزوں سے، آگ سے بنا، پانی سے بنا، مٹی سے بنا، ہوا سے بنا، 4 چیزوں سے بنا۔ حضرت جابر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء، اے محبوب یہ بتائیے تو صحیح سب سے پہلے کون سی چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ کس سے پہلے کہا قبل الاشیاء؟ الف لام استغراق کا ماننے مطلب ہوگا کہ ساری چیزوں سے پہلے۔ ہم نے کہا پانی سے پہلے، آگ سے پہلے، ہوا سے پہلے، مٹی سے پہلے، ان ساری چیزوں سے پہلے ہو گئے نا۔ اب ایک بات بتائیے گا، 4 چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ انسان آپ کے میرے وجود میں 4 چیزیں ہیں کہ نہیں؟ کائنات میں بھی یہ چاروں عناصر ہیں، آگ بھی ہے، اسی لیے تو بخار تیز ہو جاتا ہے تو پٹی رکھ رکھ کے آگ کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا پانی ہے، جب پانی بڑھ جاتا ہے پھیپھڑوں میں بڑھ جائے تو پھر پانی نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگ پانی ہو گیا، مٹی ہے، آپ جب اپنے جسم کو رگڑتے ہیں تو میل چھٹتا ہے، مٹی کی شکل کا ہوتا ہے۔ آگ پانی مٹی ہوا، ہم نے کہا آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تبھی تو آکسیجن دے کر کے ہوا بنائی جاتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، 4 چیزیں ان سے انسان بنایا جاتا ہے۔ حضرت جابر نے کہا تھا آقا یہ بتائے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز
को पैदा किया। अब सबसे पहले में आग भी आ गई, हवा भी आ गई, पानी भी आ गया, मिट्टी भी आ गई। सरकार ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। इससे पता चल गया मुस्तफा की हकीकत नूर है, इसलिए ये बशरियत के लिए आग, पानी, मिट्टी, हवा चाहिए। और जब नबी का नूर बना था उस वक्त ये चारों चीजें थी नहीं, इसलिए हम सुन्नी कहते हैं। सरकार की हकीकत नूरानी है, अलबत्ता उस नूरानियत पर लिबादा इंसानियत को भगा दिया गया है। वजह क्या है? अगर सरकार सिर्फ नूर ही बनकर आते, आका करीम के लिए लिबादा बशरियत का नहीं होता। अकीदा यही है, सरकार नूर भी है, सरकार बशर भी है, मगर खैरुल बशर है। मोहब्बत से बोलो या सुभान अल्लाह, खैरुल बशर है। हमने कहा अगर आका सिर्फ नूर की कैफियत में आते, सरकार अलैहिस्सलाम ने अगर इंसानियत का लिबादा नहीं होना होता तो अबू बकर ने देखा नहीं होता, उमर ने देखा नहीं होता, तो फिर सिद्दीक़ अकबर कैसे बनाया जाता, फारूक आजम कैसे बनाया जाता? इसीलिए तो अल्लाह ने लिबादा इंसानियत का दे दिया, लिबास इंसानियत का दिया, ताकि महबूब जाए और जो जो चेहरा देखता जाए मुस्तफा का सहाबी बनता चला जाए। वरना एक शायर कहता है कि किसमें दीन की ताकत, नजारा कौन कह सकता, बशर के रूप में आका अगर आया नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अर्ज किया था फरिश्ते भी जिक्र मुस्तफा करते, इस पर दलील दे रहा था। और अल्लाह स्पेशली 70,000 फरिश्तों को सुबह, 70,000 को शाम, 1,40,000 फरिश्ते नबी के दर पे भेजता किस काम के लिए? रिवायत जरा ध्यान से सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। अन्नुबई हतबने वहबिन अन्ना काबन दखला अला आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फसकरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकाल मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नगरा 70,000 मिनल मलाइका हत्ता यहकु बिकब्र रसूलुल्लाह हत्ता यहकु बिकब्र रसूलुल्लाह यदरबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत नुबैया इब्ने वहब कहते हैं अहबार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा-ए मोहतरमा, ईमान वालों की मां, उम्मुल मोमिनीन, महबूबे रब्बिल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आए। और जैसे ही आए तो क्या देखा कि वहां सहाबा और ताबईन बैठकर अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। स्पेशली महफिल सजी है, जिक्र मुस्तफा चल रहा है, जिक्र मुस्तफा हो रहा है। हजरत काबे अहबार कहते हैं मैं खामोश क्यों रहता? आपने भी फरमा दिया, कहा जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तवज्जो है ना, जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है, फरमाया हर सुबह में 70,000 फरिश्ते आते हैं और आके करते क्या है? हत्ता यहुकु बिकब्र रसूलुल्लाह, चारों तरफ से आके नबी की कब्र को घेर लेते। हम अगर वली के मजार पर जाए लोगों को बड़ी तकलीफ, हमने कहा हम कुछ नहीं, फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आला हज़रत कहते हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। नहीं समझ पाए, परवाना देखा है ना, शमा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों 3 काम करते हैं हत्ता यहुफ़्फ़ु बिक़ब्र रसूलुल्लाह। पहला काम यह है कि हुजूर की कब्र अनवर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं बाअदब। दूसरा काम यदरिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूरानी परों को सरकार की कब्र से मस करते हैं, टच करते हैं, मिलाते हैं, उससे करीब करते हैं। ए नूरी मखलूक फरिश्तों, तुम्हें नूर की क्या जरूरत? तुम तो नूर वाले हो। सरकार की कब्र अनवर से फरिश्ते अपने बाजुओं को टच करके मस करके ये बता रहे हैं यही वो बारगाह है जहां से नूर तस्लीम किया जाता है। आला हजरत कहने लगे मैं कहता तू बादशाह भर दे दिया नूर का, नूर दिन दूना तेरा देदार सबका नूर का। अच्छा यहां से जवाब उनका भी मिल गया जो कहते हैं मदीने शरीफ जाओ तो मस्जिद की नियत करना, हुजूर के रोजे की नियत मत करना।
हमने कहा ये तुम्हारे गुरु ही को कबूल हो और मुबारक हो। हमारा नजरिया तो ये है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने की नियत भी करते हैं और सरकार के रोज़े पाक के दीदार की भी नियत करते हैं। और हम तो यही कहते हैं दीदारे मुस्तफ़ा सरकार का रोज़े पाक तो बहुत बुलंद वाला है। हुजूर का रोज़ा जिस खित्ते, जिस इलाके, जिस शहर में है, हम तो ये दुआएं करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप कहेंगे मौलाना कितने काम करते हैं। मैंने कहा फतवा पहले यहाँ लगा, फरिश्तों को अल्लाह भेज रहा है। बोलो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई फरिश्ता आ सकता है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। कुरान ने कहा फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं करते, वही करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म दिया करता है। हमने कहा 1,70,000 फरिश्ते सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम आ रहे हैं, 1,40,000 को अल्लाह भेज किस लिए रहा है? नबी की कब्र अनवर के दीदार के लिए भेज रहा है। वो आकर अपने बाजुओं को नबी की कब्र अनवर से बस कर रहे हैं और सरकार पर दुरूद सलाम भी भेज रहे हैं। हमने कहा इनमें तीनों में कहीं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का जिक्र है? नहीं है। हमने कहा अगर कोई ये नियत भी कर ले, ये नियत ना भी करे कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा, सिर्फ सरकार के रोजे की नियत कर ले, तब भी कोई जुर्म नहीं है। इसलिए कि उसको मालूम है कि जब सरकार के रोजे पाक के करीब जाऊंगा कि मेरा दिल सुधर जाएगा, और जब दिल सुधरता है तो पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करती है। हमने कहा वही कर रहे हैं जो अल्लाह के फरिश्ते हर दिन आकर के किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर पर दुरूद पढ़ने, और जब दुरूद पढ़ेंगे तो कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो बताओ रसूल अल्लाह जब बोला तो यहाँ नबी का जिक्र आया कि नहीं आया? ऊंचा बोलो। चलो हजरत आदम की बारगाह में लेकर आपको, हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब क़ता इज्तिहादी हो गई, रब की बारगाह में दुआ की मौला मैं तुझे अपने हबीब का वसीला देता हूँ, यानी मोहम्मद अरबी का वसीला देता हूँ। लिमा गफरतली, ए अल्लाह तू मेरी लफ्ज़ को दरगुजर फरमा दे। भाई इधर देखिए, अगर आपकी तवज्जो हट रही है, थक गए हो तो इशारा कीजिए, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है जाने की, लेकिन आप तो चूंकि आ गया हूं तो कुछ बातें अर्ज ही कर देता हूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब नाम आया, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कैफा अरफ़्ता मुहम्मदा। अभी गौर करना, हजरत आदम है, हजरत हव्वा है, दो ही इंसान है दुनिया में, एक है इंसान औरत की शक्ल में और एक है मर्द की शक्ल में। जरा तवज्जो फरमाए, ध्यान से सुन भाई मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मोहम्मद अरबी का बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वसीला देता हूँ जो मेरी खता को, मेरी खता इज्तिहादी और लफ्ज़ को दरगुजर कर दे। अल्लाह ने फरमाया कैफा अरफ़्ता मुहम्मदा, तूने मेरे महबूब को कैसे पहचाना? वलम अखलुकहु, अभी तो मैंने उसको पैदा भी नहीं किया है। अब हजरत आदम के जुमले सुनिएगा, कहते हैं लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिका। ये अल्लाह जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया और मेरे अंदर तूने रूह को फूंक दिया, रफा तो राशि, तो मैंने सर को ऊपर की तरफ उठाया तो क्या देखा? कहते हैं फराइतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह मैंने अर्शे मुअल्ला के सुतूरों पर लिखा हुआ देखा कि तेरे नाम के साथ मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ है। करने के लिए तो मरना पड़ेगा, और अगर मरोगे इश्क़ रसूल में तब वहां पहुंच पाओगे, वरना तो फिर अरे समझे मेरी बात को? अरे समझ में आया? जरा इजहार तो करो, मोहब्बत से बोलो। अगला जुमला सुनिएगा, कहते हैं फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक। कहा मौला मैंने उसी वक्त जान लिया था, और इल्म यकीन के माना में भी आता है। मौला मैंने उसी वक्त यकीन कर लिया था जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ा है ना, वो तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा है। भैया अहले इल्म सोने लगे यार, नंबर वाले और टेक हटाइए, वरना फिर पता चले ऊपर से वो गिर जाए तो नुकसान होगा। मैं यहाँ तकरीर करने आया हूँ। से कहा कद सदक़ता या आदम, ए आदम तुम सही कह रहे हो। इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, मेरा महबूब है,
اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتاب تجلی الیقین کو اٹھایا نا تو سلمان فارسی کی ایک روایت ملی تھی، ابھی حضرت علامہ انوار صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ مجھے بھی روایت یاد آتی ہے، حبط جبریل علیہ السلام فقالا، جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں ان ربک یقول، اے میرے نبی آپ کا رب فرما رہا ہے قد ختمت بک الانبیاء، میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور نبی کے آخری نبی ہونے کا اقرار انسان تو انسان جانور بھی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بیان کیا نا، بابا ذرا میری طرف توجہ کریں گے آپ، ادھر دیکھیے، ادھر باتیں نہ کیجیے، دھیان سے سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں ایک قبیلہ بنی سلیم کا دیہاتی آیا اور ہاتھ میں تھیلا پکڑے ہوئے تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، لوگ کہتے نا کیا بولتے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، تھیلا لیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے جلدی سے تھیلا بھی چلا جائے اور تھیلے کے ساتھ میں تھیلے والا بھی چلا جائے۔ ذرا غور فرمائیے گا، ادھر تھیلا لے کر کے آیا اور لانے کے بعد کیا بولتا ہے، کہتا ہے اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی آپ کو رسول مان لوں۔ چیلنج سنیے گا، چیلنج خدا کے بارے میں نہیں، مصطفیٰ کے بارے میں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے ہی لے کر کے آیا میرے نبی نے اس جو جانور لے کر کے آیا تھا تھیلا کھولا، اس جانور کو چھوڑ دیا۔ جانور بھی عجیب و غریب نام ہے اس کا، عربی میں دبن اور اردو کے اندر اس کا گو۔ سرور کائنات نے اس سے عربی میں ارشاد فرمایا یا گو، اے گو۔ جیسے ہی میرے نبی کی آواز سنی وہ عربی میں بات کرنے لگی، کہتی ہے لبیک و سعدیک یا زینب الباف یوم القیامہ، کہتی ہے میرے آقا اے قیامت کی سیف و زینت، اے قیامت کی سیف و زینت، اے میرے آقا قیامت کے دولہ بتائے تو صحیح میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سرور کائنات نے پوچھا من تعبد، یہ بتا تیرا معبود کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ ایسے نہیں ہے، آواز آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ، عربی سننا ذرا، وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت ثوابہ وفی النار عقابہ۔ سرور کائنات نے پوچھا بتا تیرا معبود کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگی میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی بارشات ہے، سمندر میں جس کے راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ سمجھ میں آئی بتا؟ اب اعتراض اس پر نہیں تھا، اعتراض تھا اگر یہ رسول مان لے، چیلنج یہاں تھا اس کو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بلّا، یہ بھی بتا دے میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذب۔ کہتی ہے اے میرے آقا تو اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کو پکڑ لے گا، اور ناکام ہونا مراد ہو جائے گا جو آپ کے دامن سے ہٹ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا اس نے؟ کہا میرے سرکار آپ تو اللہ کے نبی ہے اور آپ آخری نبی ہے، اور کہا وہ کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے دامن کو تھامے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اور دوسرا کہا وقد خاب من کذبک، جو آپ کے دامن کو چھوڑ دے گا ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی کہتے بیزار، ہٹنے والا، بھاگنے والا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سمجھ میں آگیا آپ کے؟ بات چل رہی تھی اس پر کہ سرکار علیہ السلام کو آخری نبی ہم ہی نہیں
बोलो बोलो, जानवर भी मानते हैं। हमने कहा एक बात और अर्ज कर दें आपसे, जरा उस गोह से आलम तसव्वुर में पूछिए, एक बात तो बता, सवाल सरकार अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुख्तसर किया था, यही तो पूछा था मन ताबो, मेरा माबूद कौन है? अगर तू जवाब देती अल्लाह तब भी जवाब हो जाता, लेकिन तूने जवाब को लंबा क्यों कर दिया है? सरकार ने इतना ही तो पूछा था मैं कौन हूँ, कह देती रसूलुल्लाह, जवाब हो जाता, लेकिन तेरा पहला सवाल उसका जवाब बड़ा लंबा, अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिल नारी इकाबुहु। दूसरे सवाल के जवाब में तूने कहा, क्या कहा? अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलहा मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़ब। भाई नुक्ता बयान कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। नुक्ता सुनिएगा, आलम तसव्वुर में पूछो, सवाल छोटा तो जवाब लंबा क्यों किया? वो कहेगी तुझे पता नहीं, सवाल तो अल्लाह ने मूसा से भी छोटा ही किया था, लेकिन जवाब मूसा ने लंबा दिया था। वजह ये थी कि आज मूसा की आज मूसा की बात किससे हो रही थी? आज मूसा की बात रहमान से हो रही थी। जब बात मूसा की रहमान से हो तो जवाब लंबा किया जाता है, और आज मैं बात हबीबे रहमान से कर रही हूँ, इसलिए जवाब को लंबा कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र मुस्तफा पढ़ते और सहाबी। समझ गए? अभी तो जिक्र मुकम्मल का हो सकता है, इस कामिल जात का जिक्र हम मुख्तसर वक्त में कैसे कर सकते हैं? हदीस पाक समझ में आई? हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जिब्रील अमीन आए, आकर कहने लगे आका आपका रब कह रहा है मैंने आपको आखिरी नबी बनाया है। अगला जुमला सुनिएगा, वमा खलक़तु खल्क़ल अकरमा अलैया मिनका, महबूब मैंने मखलूक को बेशुमार बनाई है। अब बेशुमार ये मेरे एतबार से है, वरना तो अल्लाह के इल्म में सारी चीजों की बातें हैं और सारा शुमार है। कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, कुरान में फरमाया गया। हमने कहा जरा गौर करना, कहा मैंने मखलूक को बहुत सारी पैदा की है, लेकिन तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को पैदा नहीं किया है। एक एक जुमले पर आपकी आवाज आया, लगे तो सही कि इस वक्त रात के 1:30 नहीं 2 नहीं बल्कि रात के 9 बज रहे हैं, और ये दीवाने मोहब्बत से जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं। अगला जुमला सुनिएगा, अब आप दम बरसरे मतलब हजरत ने कहा था, अल्लाह ने भी फरमाया बकरत इसमका मा इसमी फला उज़कर फी मौज़अ हत्ता तुज़करा माइया। कहा महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ दिया है, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। मियां कमाल को देखे, इमाम ने नियत मानी है, मौलाना मसरूर साहब नियत मान रहे हैं, कह रहे हैं वास्ते अल्लाह ताला के, क़ियाम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, तहलील अल्लाह के लिए, सारी इबादत अल्लाह के लिए। लेकिन नबी नमाज के आखिर में कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमने कहा देख तो सही, अल्लाह ने नबी का नाम अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ दिया कि इबादत में भी मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। और जो सलाम नहीं समझ पाते हैं, जो अगर मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम पर एतराज करते हैं, उनसे कहना अगर उधर नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह तुमसे नमाज में भी पढ़वा दिया करता है। और अगला जुमला सुने, तुम्हें इस्माइल दहलवी का वो गंदा अकीदा तुम्हारे लिए, तुम कहते हो नबी के ख्याल से नमाजें नहीं होती। हमने कहा सुन तो सही, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं हाजिर शख्स हूं फी नफ्सिका सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी। कहा मुस्तफा के उम्मती जब अत्तहियात में बैठ अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी पढ़ने की बारी आए तो उससे पहले अपनी अक्ल को हासिल कर, अपने दिमाग को हासिल कर, अपने दिल को हासिल कर, और अपने दिल में मुस्तफा की जात को हासिल जान, फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी, ताकि तुझे ऐसा लगे कि नबी के बगैर देखे नहीं देखकर सलाम कर रहा है। बात समझ गए? आप ये नहीं बताइए, अल्लाह ने फरमाया तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जम कर लिया है, जोड़ लिया है, जहां मुझे याद किया जाएगा। हमने कहा अगर तुम ना समझ पाओ आई लव मोहम्मद का मतलब तो हम क्या करें? रब तो खुद कह रहा है लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक इंदी व मंज़िलतक लदय्या।
کہا محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام میری بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے. سمجھ گئے؟ اس عشق رسول کو دل سے کبھی نکلنے مت دینا. اور ایک چیز اور بتاؤں، بڑی معذرت نہیں کروں گا، بڑی ہمت کے ساتھ بول رہا ہوں. معذرت گناہ پہ کی جاتی ہے، اچھی بات پہ معذرت نہیں بلکہ الحمدللہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ. ایک بات مجھے بتائیے، چند سال پہلے ایک کتے نے سرکار کی شان میں توہین کی، ڈاسنا کا ڈسنے لگا. اس وقت میں آپ نے کیا کیا تھا؟ احتجاج کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ نکلے تھے. آپ نے سرکار علیہ السلام کا ذکر بڑھایا تھا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ کیوں نکلے ہو؟ آپ کہیں گے نبی کی گستاخی ہو گئی. میں نے کہا اچھا اگر نبی کی گستاخی ہو جائے آپ برداشت نہیں کر پاتے ہو. ارے بولو کر پاؤ گے؟ پارشد صاحب آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، نہیں کر پاؤ گے اس لیے کہ پارشد بننا بعد میں ہے، ڈاکٹر بننا بعد میں ہے، انجینئر بننا بعد میں ہے، پروفیسر بننا بعد میں ہے. پہلے عاشق مصطفیٰ بننا ہے، پہلے غلام مصطفیٰ بننا ہے، ایک سچا مسلمان بننا ہے. یہاں سے لے کر پیچھے سے لے کر آگے تک دائیں بائیں سب کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر نبی کی توہین کوئی کافر کرتا ہے، داسنا سے دسنے والا نبی کی توہین کرے، ہمیں وہ بھی برداشت نہیں. اور اگر دارالعلوم دیوبند سے گستاخی کی جائے ہمیں وہ بھی برداشت نہیں. اس لیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، دو رنگی نہیں ہے یہ رنگی ہے. ہمیں اگر ادھر کی گستاخی برداشت نہیں ہے تو ادھر کی بھی گستاخی برداشت نہیں ہے. یہاں اس کو برداشت کریں گے نہ اس کو برداشت کریں گے. چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ چہروں پر مرجھاہٹ آ گئی ہے. رشتہ داروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، غداروں کو برا کہہ رہا ہوں. غدار تمہارے رشتہ دار ہو تو ہو. میں غداروں کو نہ کل چھوڑتا تھا نہ آج چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت میں پڑھا ہے دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. وقت بڑا مختصر ہے، اللہ سلامت رکھے. میں بھی لبیک کے نعرے سے پیار کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا یہی نعرہ لگاؤں. سبحان اللہ. وقت بڑا مختصر ہے. ایک بات مجھے بتائیے، تم میں سب نے سرکار کے میلاد میں شرکت کی تھی؟ کون کون گیا تھا جلوس محمدی میں؟ آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ 4 لوگ بیٹھے، آپ لوگ نہیں گئے تھے لگ رہا ہے. گئے تھے نا؟ سرکار کے میلاد میں کیوں گئے تھے بھائی؟ جلدی بولو کیوں گئے تھے؟ بولو بولو. محبت میں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد منانا بدعت ہے، بولو بولو، محبت ہے کہ عداوت؟ تو جب عداوت ہے تو عداوت والوں سے رشتہ داریاں کیسی؟ یہ سب یہاں آ کر کی عقلیں کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ بالکل، بہت بڑھیا. میں گیا تھا حیدرآباد کی سرزمین پر، کئی دنوں سے نکلا ہوا تھا، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں اللہ کا فضل ہے جس مشن کو لے کے چل رہا ہوں اس مشن کی برکتیں ہیں کہ اسی مہینے میں 3 کنٹری کا سفر کر کے آ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. کوئی یہ نہ سوچے کہ شہرت مال یہ سب نہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شہرت میں بھی کسی سے پیچھے نہیں، مال میں بھی اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، اللہ نے عزتی بھی نوازی ہے. لیکن یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے گول کر دیا. سبحان اللہ. مگر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حیدرآباد کی سرزمین پر گیا، کئی دن سے سفر پہ نکلا تھا، کچھ مجھے بڑی ہو گئی. میں نے کہا بھائی مجھے لے کر کے چلو. ایک صاحب کے یہاں لے کر گئے، بولے مراد آباد کا ہی حجام ہے. اس کے پاس گئے، اس کو میں نے دیکھا مسلمان کا، مراد آباد کا رہنے والا. کہنے لگا حضرت آپ کا کام میں کر رہا ہوں، آپ میرا کام کر دیجیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا حضرت یہ بتائیے وہابی اور سنی میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، جو نبی کو مردہ مانتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے، جو نبی کو مختار مانتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، جو نبی کو بے اختیار مانتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، 60 سالہ زندگی ہے، اس لیے پگلے پنڈے سے زندگی مت کاٹیے گا. قبر میں تمہارا ہمارا باپ نہیں آئے گا، رسول پاک آئیں گے اور رسول اسی پر کرم فرمائیں گے جس کی بولی یہ ہوگی دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ہم نے کہا اگر باپ کا گستاخ تمہیں گوارا نہیں ہے تو رسول پاک کے گستاخ کے ساتھ دوستیاں کیسے ہوتی ہے؟
लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। हवाला भी ऐसे का दे रहा हूं जिसके हवाले से लोग खुद बहवाला हो जाते हैं। बताओ कौन है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती? सुनेंगे? बेशक अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती वो हैं जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफा का दीदार किया। सुभान अल्लाह। इनसे ज्यादा अगर मजमे में कोई दीन समझने वाला हो तो समझाए मुझे। मैं समझता हूँ इतना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा जितना उन्होंने समझा। 500 किताबें लिखी है, मुजद्दिद है। समझ में आई बता? मुजद्दिद आई ही थी दीन को, दीन में जो खराबियां लोगों ने पैदा कर दी थी उनको सुधारने के लिए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं एक शख्स ऐसा था जो अबू बकर उमर को गालियां नहीं देता था मगर गालियां देने वाले से दोस्ती थी। क्लियर करके जा रहा हूं इसलिए कि जनाजे ठीक कर लो भाई, मरते वक्त कैफियत ठीक कर लो। दुनिया ही को सब कुछ मत समझो। अपने और गैर, सही और गलत के दरमियान जो फर्क ना कर सके वो इंसान ही कैसा है। बात समझ गया ना? लोग कहते हैं हालात बड़े खराब है। मैंने कहा ये बदअकीदा देवबंदियों को जाके क्यों नहीं सिखाते हो हालात बड़े खराब है? तुम सरकार की गुस्ताखी करने वाले मौलवियों को अपना पेशवा क्यों मानते हो? तुमने कलमा नबी का पढ़ा है तो अशरफ अली ने थानवी ने जो तौहीन की है उसके बाद भी उसको मुसलमान क्यों मानते हो? तकाजा ईमान तो ये है अगर बाप भी गुस्ताख होगा उसको गुस्ताख ही कहा जाएगा। मुस्तफा से प्यार किया। कौन है हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं जानता, सब जानते। अबू कहाफा आपके बाप है। हुजूर की शान में एक बार जुमला बोल दिया, आपने अपने बाप के ऐसा धक्का मारा फसक्कहु सक्कतन फसक्कहु अबू बकर सक्कतन, इतनी जोर से सीने पर धक्का मारा बाप फसक्कत अला वजही और वो जमीन पे गिर गया। और उसके बाद सरकार की बारगाह में आए, मेरे नबी को खबर लगी कि इसने बाप को अपने धक्का दिया है। आका करीम ने फरमाया ला तहुद इलैहि, अबू बकर दोबारा ऐसा मत करना। लोग कहेंगे मौलाना तुम तो कह रहे हो कि धक्का दिया जाए और यहाँ तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा एक जुमला सुनिएगा। आला हजरत से किसी ने कहा था इमाम एक बात तो बताए, सरकार तो काफिरों के साथ भी नरमी बरतते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम तो काफिरों पर भी रहम करते थे, आप तो ऐसा कर रहे हैं, शख्सिया करते हैं बदअकीदा के साथ। आला हजरत ने जवाब दिया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं सरकार उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में हुजूर को इल्म गैब से पता था कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। अब अगर कोई ऐसा हो जिसको पता हो, इल्म गैब रखता हो कि यार ये मुसलमान हो जाएगा, तो वो सुलह भी करता रहे, इत्तेहाद भी करता रहे, मिलता भी रहे, जो करता है करे। लेकिन किसी को पता नहीं, जब पता नहीं है तो वही रविश इख्तियार करो जो हजरत उमर ने इख्तियार किया। समझ में आई बात आपके? क्या हुआ उसके बाद? अबू बकर उमर को गालियां देने वाले से दोस्ती थी। होती है ना तुम में से, कौन है भाई? राफजी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा तुझे ये काफिर बदबख्त ही बेस्ट फ्रेंड बनाने को मिला था? कुरान कहता है ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ईमान वाले ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाए, दोस्तियां सिर्फ ईमान वालों से। और आला हजरत ने रद्दुर रफ्जा में साफ लिखा है इस दौर के जो राफजी हैं वो बिलउमूम काफिर है। बताए क्यों है? आला हजरत ने कहा एक तो वो हजरत अली को हुजूर के बाद सारे नबियों से अफजल मानते हैं और कोई गैर नबी नबी से अफजल ऊंचा बोलो भाई, नबी से अफजल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहते हैं कि कुरान ये जो हमारे सामने है ये असली कुरान नहीं है, असली कुरान तो एक बंदा गुफा में लिए बैठा है, माज़ अल्लाह। ये अकीदा तुम्हारा है? खाक पड़े इस अकीदे पर। हमारा अकीदा तो यही है कि जो कुरान हमारी नजरों के सामने है यही सच्चा कुरान है।
बोलिए भाई, बोलिए, कम से कम तस्दीक तो कीजिए, यही सच्चा कुरान है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अबू बकर उमर को गालियां देता था, राफजियों के साथ बैठना, राफजियों के साथ उठना, शियों के साथ बैठना, देवबंदी वहाबी के साथ दोस्ती यारी करना, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। और अहले मंबर से भी अर्ज करूंगा, भैया एक बात याद रखिएगा, पहले भी मैंने अर्ज किया था, हक बोलते रहिए, फिक्र मत कीजिएगा किसी की, वरना कयामत के दिन, मैंने किताबों में यह भी पढ़ा है, कयामत के दिन कुछ ऐसे खतीब भी होंगे, बड़ी बड़ी कैचियों से उनकी ज़बानें काटी जाएगी, और ये वही लोग होंगे जिनका अमल, जिनकी फिक्र और जिनका अंदाज अमल के खिलाफ होगा। कहेंगे तो हाँ, हम आला हजरत का मसलक मानते हैं, लेकिन कभी देवबंदियों से दोस्ती करेंगे, कभी राफजियों के यहाँ जाकर बैठ जाएंगे। याद रखिएगा, हमें ऐसे मौलवी भी गवारा नहीं है, इसलिए कि मौलवी की मौलवियत उसी वक्त तक मोतबर मानी जाती है जब तक वो सरकार की शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा है। अवाम का हाल भी वही है, मुसलमान उसी वक्त तक मुसलमान माना जाएगा जब तक कि सरकार की शरीयत पर अमल कर रहा है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, रद्द कीजिए, खुल के रद्द कीजिए, क्यों घबराते हैं यार? कोई सदर नाराज होगा तो होने दो, देश भी नाराज होगा तो होने दो। हम अपनी माँ के पेट से जब पैदा हुए थे, अल्लाह ने आदम को पैदा करने से 50,000 साल पहले मेरी और आपकी तकदीर में लिख दिया था रोजी वहां से मिलेगी। इसलिए शहजाद डंके की चोट पे बोलता है, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर रद को लेकर के जाता हुआ रद करता हूँ। आला हज़रत ने फर्ज आज़म लिखा है, उसी रद पर अमल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी फिक्र रहती है कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा। यकीन ना हो तो मेरे पास बैठिएगा, 2025 तक का आखिर तक का डाटा आपको दिखा दूंगा, कितनी तारीखें मेरी खाली है और कितनी भरी हुई है। ये तहदीस नियामत के तौर पे बोल रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है किसी कमेटी के नाराज होने से रिस्क नहीं रूठता है। जो अल्लाह की शान पर भरोसा करता है, अल्लाह उसको वहां से रोजी देता है जहां उसके ख्याल में नहीं। की मस्जिद तो छूटेगी, अल्लाह ने बेशुमार मस्जिदें रखी है, बेशक। आप बस हक बोलते रहिए, किसी की जी हुजूरी करने की हमें कतई जरूरत नहीं है। हजरत इमाम किसई के पास हारून रशीद अपने बेटे मामून को लेकर आया, पढ़ाइए इसको, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको मेरे घर पढ़ाने आएंगे। आपने फरमाया, मैं तेरे घर क्यों पढ़ाने आऊंगा, तू अपने बेटे को मेरे घर भेज। अब अगर कोई ट्यूशन पढ़ाने जाता है तो उसको इस पर फिट मत कीजिए, वो दीन सिखाने की नीयत से अगर जा रहा है, मगर सेठ साहब की जेब पर या उनकी फिक्र या उनकी जी हुजूरी पर नजर है, तो फिर अगर मस्जिद में भी बैठ के पढ़ाता है, नजर उधर है तो बेकार है। खुददारी हमारा बहुत बड़ा जेवर है। आपने कहा, मैं तेरे बेटे को घर नहीं पढ़ाऊंगा, तेरा बेटा और बच्चों की तरह मेरे पास पढ़ने आएगा, लेकिन उलमा का वकार भी बता दूंगा, दोनों चीजें सामने रख रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, अच्छा एक शर्त तो मान लो, मेरा बेटा जब आएगा तभी आप सबक देंगे। फरमाया, ना, गरीब का बच्चा पहले है तो सबक भी पहले। सुभान अल्लाह बोलिए। इमाम किसई ने कहा, ठीक है भाई, इमाम अबू यूसुफ के खालाजाद भाई है और कुर्राए सबा में इनका नाम आता है, कोई मामूली जात थोड़ी है। कहा ठीक है, अपने बच्चे को भेज दिया कर। मामून आके पढ़ता रहा, हजरत पढ़ाते रहे। एक दिन हारून रशीद घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। जैसे ही वो गुजरा तो उसने क्या देखा, भाई बात मत कर, ध्यान से सुन मेरी बात। उसने क्या देखा? उसने देखा कि साहब हारून रशीद का बेटा हजरत इमाम किसई के वुजू का पानी लोटे से उंडेल रहा। हारून रशीद नीचे उतरा, उतरने के बाद अपने बेटे के थप्पड़ मारा। तरबियत दिया करो, मौलाना साहब की कदर गिराने के लिए अपने बच्चों के सामने मौलाना साहब से लड़ लेना, उनकी इज्जत कर के बजाय उनकी बेइज्जती कर लेना, ये अक्लमंदी नहीं है। अगर ऐसी नस्लें छोड़ के जाओगे ना तो फिर अकीदे कहाँ महफूज रहेंगे? अकीदे उन्हीं के बच रहे हैं जो उलमा से जुड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? तवज्जो है?
इमाम किसई रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू कर रहे थे, हारून रशीद नीचे उतरा और उतरने के बाद एक थप्पड़ मारा। आप सोच रहे होंगे शायद इसलिए मारा होगा कि बादशाह का बेटा, इतने बड़े खलीफा का बेटा तो एक मौलवी के पैर धुलवा रहा है। नहीं, आपने उसके एक थप्पड़ मार कर कहा, एक कम नसीब, तुझे अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल रहा है, अरे एक हाथ से इमाम का पैर मसल, दूसरे हाथ से पानी डाल, ताकि समाने को आलिम का मकाम और मर्तबा पता चल जाए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके इस शहर के अंदर जो उलमाए अहले सुन्नत रच दस कर और मेहनत करके सुन्नियत का काम कर रहे हैं, उनका पीछा मत लीजिएगा, उनका पीछा मत लीजिए, उनके पीछे चलिए, उनको पकड़ के रखिए, उनका साथ दीजिए, सुन्नियत के लिए आगे बढ़िए। लेकिन यह भी कहूंगा जो सुन्नियत का मजाक उड़ाते हो, राफसी शिया देवबंदियों से हाथ मिलाते हो, उनसे कहिएगा जनाब आपकी छुट्टी है, हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम साथ उसी का देते हैं जो आला हजरत के मसलक पे चलता है और जिसकी बोली यह है मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैंने अपने कहे से भी तकरीबन बहुत डबल हो गया है ना, 1 घंटे से भी तकरीबन ज्यादा हो गया। 4 मिनट बाकी है, 4 आसमानी किताबें हैं, 4 खुलफा है, 4 तरीकत के इमाम हैं, 4 फिक़्ह के इमाम। गुफ्तगू भी 4 मिनट में से बच जाए। गौर कीजिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का नतीजा क्या है? आई लव मोहब्बत का नतीजा क्या है? आई लव मोहम्मद का नतीजा क्या है? बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के हजरत अनस फरमाते हैं, जा रजुल इला रसूलिल्लाहि फकाला मतस्सा काला मादा आदत लिस्साअति, जरा गौर करना, सरवरे कायनात की बारगाह में एक शख्स आया, हजरत अनस बैठे थे, कहने लगा कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया कुछ तैयारी की है? ये तो 40 दिन गए, तस्बीह पीठ के पीछे रखी, घुमाना शुरू कर दिया और अब अपने आप को कोई कह रहा है कि मैं तो हजरत जुनैद बगदादी की तरह इबादत कर रहा हूँ, कोई कुछ कह रहा है। इनके मौलवियों ने तो लिखा है उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा वो कैसे? बोलो नबी 63 साल की जिंदगी, अब कोई उम्मती 80 साल जिंदा रहे और 80 साल तक नमाज पढ़ता रहे। इन बदबख्तों को ये पता नहीं है, इनको सोचना चाहिए नबी का एक सजदा और कायनात के सारे सजदों पर नबी का सजदा भारी है। अरे जब हुसैन के सजदे की मिसाल नहीं मिलती तो नबी के सजदे की मिसाल क्या मिलेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात? बेशक। हाँ, सरकार ने पूछा क्या तैयारी है? सहाबी के पास तो ऐसी तैयारी, नमाजें पढ़ रहे हैं तो सैयदुल अंबिया के पीछे, लेकिन ना नमाजों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि ये मुस्तफा वाले हैं। आपने कहा उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब सरकार का जुमला सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया फइन्नका मअ मन अहबब्ता, तुम जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। यहाँ तक हदीस मुकम्मल हो गई। अब सहाबी का स्टेटमेंट लेके जाइएगा। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन अशद्दा मिन कौलिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फइन्नका मअ मन अहबब्ता। सरवरे कायनात के सहाबी हज़रत अनस ने रिजल्ट निकाला, नतीजा दिया, कहा कसम खुदा की इस्लाम लाने के बाद से लेकर जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी। सरकार ने कहा था फइन्नका मअ मन अहबब्ता, कहा मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हजरत अनस कहते हैं उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकर व उमर व इल्लम अमल बिमिस्ली अमलिहिम, कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ, अगरचे मेरे अमल उनके अमाल की तरह नहीं है। आपने कह दिया और समझा दिया, जब अबू बकर उमर से मोहब्बत है तो जो हाल क़यामत के दिन अबू बकर उमर का होगा वही हाल अनस इब्न मालिक का होगा, और उनका हाल बेहतर है तो हमारा हाल भी बेहतर होगा। चलते चलते उस वाक़ये की तकमील कर दूं, रह न जाए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते शेखैन को गालियां देने वाले से दोस्ती थी, जिसकी दोस्ती थी उसके मरने का वक्त करीब आया। मैंने कहा था ना जनाजे ठीक करो, क्यों कह रहा हूं सुने। मरने का वक्त जब करीब आया तो घर वालों ने कहा कलमा पढ़ कलमा पढ़, उसकी जबान पे कलमा ही नहीं चढ़ रहा है। अल-अयाज़ु बिल्लाह।
मरते वक्त अगर किसी को कलमा ना मिले और ईमान की दौलत से महरूम हो तो फिर उसी से पूछो ना कि तूने दुनिया में रह के किया क्या था। अभी तो सब घाल मेल है ना, हमारे भाई हैं। मैंने कहा भाई तेरे होंगे, हम गुस्ताख को कभी भाई नहीं मानते। बेशक बेशक। काय के भाई है? एक बात मुझे बताइए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इधर देखें, मुस्कुराइए मत, वो सही कह रहे हैं, इसी तरह जज्बा होना चाहिए। ये दो रंगियों ने सुन्नियत को बर्बाद किया है। सबसे बड़े नुकसान देने वाले वो लोग हैं हमारी सुन्नियत में। यार जिसको सुन्नियत पसंद नहीं है और अगर दोनों तरफ की ढपली बजा रहा है तो मैं कहूंगा खुदारा या तो सुधर जा या फिर एक तरफ को हो जा, तेरी वजह से सुन्नियत बर्बाद हो रही है। बेशक बेशक। सरकार ताजुशरिया ने उसी को सुले कुल्ली कहा है। ये सुले कुल्ली देवबंदी वहाबी से ज्यादा खतरनाक है, चूंकि आस्तीन का सांप है, कब डसले कुछ पता नहीं। यही लोग बर्बाद करते हैं सुले कुल्ली। सबसे खतरनाक कौम हिंदुस्तान में सुले कुल्लियों की, इसको कहते हैं आस्तीन में बैठा हुआ सांप। सुनिएगा, उसकी जबान पे कलमा नहीं चढ़ रहा है, ये कह रहे कलमा पर, अभी उस पर मालम युगरगिर की कैफियत में, युगरगिर गरगरा, रूह निकलती है पैरों से, यहाँ आकर हलक में आती है ना तो फिर काका की आवाज आती है ना, उसी को गरगरे की कैफियत कहते हैं, और वहीं से फिर रूह परवास कर जाती है। ठीक है ना? अभी वो कैफियत नहीं थी, बोलने की हालत थी उसकी। घर वालों ने कहा कि हम तुझे कलमा कहलवा रहे हैं, तो कलमा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है? तो वो कहता है मैं कलमा कैसे पढ़ूं, मेरे सामने दो शख्स खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तू अबू बकर उमर को गालियां देने वाले की महफिल में बैठता था, तू क्या समझ रहा है तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? हाशा वकल्ला, तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। आगरा के सुन्नी मुसलमानों, अफसाना नहीं सुना रहा हूं, तुम्हारी आंखें संवारने की बात करता हूं। अरे जब अबू बकर वो की गुस्ताखियां करने वाले से दोस्ती करने वाले का इतना बुरा हाल है, तो नबी के गुस्ताखों से रिश्तेदारियां करने वालों का हाल क्या होगा? दोस्तियां करने वालों का हाल क्या होगा? पार्टनरशिप करने वालों का हाल क्या होगा? कर लो 60 साल तक, तुम्हें कितनी दुनिया कमाना है कमा लो, लेकिन कयामत के दिन जब सरकार ये कह रहे हैं तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम्हारी मोहब्बत है, तो जो वहाबी से मोहब्बत करता है वो वहाबी के साथ है, जो देवबंदी से मोहब्बत करता है वो देवबंदी के साथ है, जो लापसी से मोहब्बत करता है वो लापसी के साथ है। हम सुन्नियों से मोहब्बत करते हैं, हम सुन्नियों के साथ रहेंगे और हम यही कहेंगे महू सुन्नी रहू सुन्नी मरू सुन्नी मदीने में, ताकि ये बात में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। इसलिए याद रखना, हमने इसके रसूल का जाम दिया है, जो नबी का होगा सीधे से लगाएंगे और जिसको सरासी गुस्ताखी देखेंगे कान की ठोकर से पीछे करेंगे। इसलिए कि हम दुनिया को राजी करने नहीं आए हैं, हमारी बोली है कान को ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम जाम। अब हमें मीठे जाम नहीं चाहिए, शुगर की बीमारी ज्यादा हो गई तो कड़वा जाम पिलाएंगे तभी बीमारी होगी, अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लोग इसी में लगे, वहाबियों को बुरा क्यों कहते हो? सोशल मीडिया पे हो तो बताओ, रजा खानियों के नाम से पर्चा दारुल उलूम देवबंद का बताओ वायरल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बेशक हुआ था। जिसका जवाब मैंने दिया है। 5 सवाल उनके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, सवाल का उन्वान क्या है? टाइटल सुनो, मुहाजरात इल्मिया बर रद्द रजा खानियत। हमें कहते हैं कि माहौल खराब है, हम कुछ नहीं करना चाहते। अबे कम वक्तों मदरसे में फिर आला हजरत के खिलाफ पढ़ाते क्यों? और अगर पढ़ाते हो आला हजरत के खिलाफ, हम दीवाने मरे नहीं है, तुम्हारी माँ को दूध पिलाया है, सामने बैठो हमारी का पानी दूध में दूध करके पिलाएंगे। ये पीछे से वार करना तुम्हारी आदतें हैं, सामने से वार हम करते हैं। हमने कल भी तुम्हें धूल चटाई थी, आज भी धूल चटाई है। तुम्हारे मौलवी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है, काफी रहेंगे। तुम्हें सब उठा के दिखाओ। हम कहते हैं हमारे आला हजरत को अगर हिम्मत है तो
जो अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर सरकार की तौहीन करे तब तो तुम्हारा जलाल निकलता है, और मोहल्ले में जो बैठा हुआ देवबंदी सरकार को मुर्दा कह रहा है, तुम्हें वहां जलाल क्यों नहीं आता? उससे दोस्ती क्यों करते हो? सरकार जिंदा है, ये अकीदा है। इसका मतलब अगर आप किसी वहाबी से दोस्ती कर रहे हो तो तुम्हारा अकीदा भी मुर्दा होने लगा है। सीधी सी बात है। फिर तुम ईमान के ढडोरे पीटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ईमान नहीं मिल पाएगा। ईमान उसी वक्त मिलेगा जब आला हजरत की जबान में कहोगे उन्हें जाना, उन्हें वाला, रखा खैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और इसी मोहब्बत में मुझे और आपको सबको उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।